Right, children. So in the previous classes, we were doing about natural selection, and I already explained you what is natural selection, how it paves the way for the evolution. Okay, we are done that the natural selection along with what you call reproductive isolation. These two factors are necessary in order to help in the evolution to carry out. So evolution हो जाएंगे और उसको हमने पढ़ेंगे. ठीक है. Now we shall study that अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन को मैंने आपको एक नाम भी बताया था. दैट इज आई सेड इट इज व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन. एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी what type of evolution natural selection along with reproductive isolation, or rather I can put it in the other way, that is पूरा ही बता देता हूँ मैं. that is the organisms which are in one particular place. From there they distribute to the different geographical areas, then they get adapted to the local condition and they form a new species. This type of evolution is known as surprise test. Adaptive, yes. That is the organisms which are moving to the different type of condition, different geographical condition. Geographical condition जरूर अलग होगी तो definitely वहाँ की environmental condition भी अलग होगी. And if the environmental conditions are different, then the organisms should also to bring about the changes in their body in order to suitably live in that particular environment. So accordingly the changes are required. So this type of adaptation which are starting from one place, and when the organisms are distributed to the different geographical condition, the organisms get adapted to that particular type of condition, then it is called adaptive radiation. I also explain you how the adaptation take place. Adaptation is not that suppose you are asked to live in water, है ना, किसी इंसान को हम जो है पनिशमेंट दे दें कि for 10 years you will have to stay in water only. So we will develop gills with his own because he is in water. No. It is not like that. Or even if you are living in a particular place, particular type of condition, your body will get adapted. There are two type of adaptation. एक adaptation होता है वो short term adaptation होता है. वो एक छोटा सा adaptation है. Those type of adaptations are actually not passing to the next generation. They are our bodies. हम उसको adaptation से ज़्यादा अच्छा रहेगा. हम acclimatization कहते हैं उसको. हमारी बॉडी का एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन रहता है टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन विच आई हैव अक्लेम. तो दैट डजंट मीन कि माई चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी, है ना. इफ दे आर ऑल्सो पुट इन टू दैट कंडीशन दे विल हैव टू आर्टिफिशियली डेवलप दैट. लेकिन दूसरे अडेप्टेशन ऐसे होते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन के रास्ते आते हैं. दैट इज large number of birth will be there, and from those variations will be there, and some of the characters will be suitable, others will not be suitable. Suitable conditions characters will be restored and unsuitable will go on eliminating, and वो process generation after generation चलता रहेगा. तब कहीं जा करके न्यू स्पीशीज बनेंगे. दैट टाइप ऑफ अडेप्टेशन और अडेप्टिव रेडिएशन वो है अडेप्टेटिव रेडिएशन. तो ये अडेप्टिव रेडिएशन जो हमने फिंचेस के अंदर देखा है, इट इज़ नॉट वी आर नॉट इवन मतलब नॉट स्टार्टेड कॉलिंग फिंचेस इन द डिफरेंट स्पीशीज नेम बाय. वाई? बिकॉज दे आर अभी तो वो अलग तो हो गए हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियर वाइज दे आर चेंज, बट येट देयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, येट दे कैन ब्रीड विथ वन अनदर. So if that is the condition, we'll still not call them as different species, even though they are looking morphologically different and they are showing different type of behavior. Behavior and morphology is not a criteria to completely define a species. Species को define करने के लिए सबसे important criteria है that is they should have the same number of chromosomes. Moreover, they should potentially interbreed. If they are interbreeding, then they are members of same species. If they are failed to interbreed with one another, then they will be called as different species. तो हमने आपको बताया कि dogs, though they are looking quite different, कहाँ पमेरियन, कहाँ वो छोटे छोटे डॉग होते हैं जिनको हम पॉकेट डॉग कह देते हैं, से कहाँ वो डाल्मेशियंस एंड वो जर्मन शेपर्ड एंड सेंट बर्नार्ड एंड ऑल, दे आर लुकिंग सो बिग. सेंट बर्नार्ड तो काफ़ी बड़ा लगता है, हट्टा कट्टा, है ना. तो
वो उनमें कितना डिफरेंस है, येट इफ यू ब्रिंग देम क्लोज दे विल ब्रीड, और उनके बच्चे आते हैं उनको कहते हैं मिक्स ब्रीड है सब, ठीक है। हमने वेरी कॉमनली वी हैव सीन दैट द डॉग्स आर ब्रीडिंग विद वन अनदर, दे आर नॉट इवन केयरिंग ये कौन सी ब्रीड का है, ठीक है। यू ब्रिंग अ पोमेरियन एंड अ डोबरमैन टुगेदर, दे विल ब्रीड, though it will be difficult because of their body shape and all, but then it is possible. Artificial insemination तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट, and they will fruitfully give a baby and fertile baby. तो ऐसे organisms को अभी हम अलग अलग species नहीं कह सकते, इसलिए we are just calling them as a variety of dog or the kinds of dog. We are not calling as a different species of the dog, ठीक है। But जहाँ ये अलग अलग हो जाएंगे ना, डॉग्स थे किसी जगह पे, वो डॉग्स जो है दे आर मूव टू द डिफरेंट हैबिटेट एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे रिमेन देयर, फिर उन्हीं में से कुछ फॉक्स बन गए, उन्हीं में से कुछ जैकल बन गया, उन्हीं में से कुछ हाइना बन गया, और उनमें कुछ डॉग्स ही रह गए। नाउ फॉक्स एंड जैकल और वोल्फ और हाइना और डॉग ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। सो कई जनरेशन तक वी हैव टू स्टे देयर, द ऑर्गेनिजम्स हैव टू कंप्लीटली रिमेन आइसोलेटेड फॉर सेवरल जनरेशन एंड गेट अडेप्टेड टू देयर लोकल हैबिटेट। तो उनमें कुछ नए जीन्स आ जाएंगे जो जीन उन दूसरों में नहीं है, एंड देन अगर आप उनको साथ लेके आओगे तो देयर विल बी नो मैचिंग ऑफ दोज जीन्स। We have already studied how the heredity works. We know that the certain chromosomes from father and the same number of chromosomes come from mother, and the same type of genes which are there, उन्हीं के homologous genes यहाँ पर होंगे, ठीक है। Location, loci of the gene should be same. Now अगर उसके अंदर कोई नया जीन आ गया यहाँ पे और वो नहीं है यहाँ पे, तो how will it function? अगर ये कोई नया जीन आ गया जो वहाँ पे नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई ये नए जीन कैसे बन जाते हैं, म्यूटेशन से बन जाते हैं, है ना, और इसके कारण क्या होता है, वो नई स्पीशीज बन जाती है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स सेवरल जनरेशंस टू अकर, है ना, एंड उसमें भी धीरे धीरे करेक्टर्स एक्यूमुलेट होते चल जाते हैं, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस एक्यूमुलेशन जो है दैट मेक्स द टू कम्युनिटीज, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग इन अ प्लेस इन अ geographical area A and a geographical area B, they become so different from one another that you have to call them as a species, ठीक है। और जब तक अगर उनमें इतने ज़्यादा चेंज नहीं आया है, केवल बीक का चेंज आया है, तो थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल चेंज आते रहते हैं, बट द लोकेशन ऑफ जीन इज सेम, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये एक जीन की लोकेशन है, ये एक जीन की लोकेशन, 3 जीन लोकेशन आर देयर, 3 जीन लोकेशन आर देयर, दे मे कम टुगेदर, और वो केवल वेरिएशन ला सकता है करेक्टर के। बट अगर एक नए जीन आ गया बीच में, तो उस जीन का तो पार्टनर ही नहीं है अदर क्रोमोसोम पे, तो हाउ विल यू शो इट्स इफेक्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द क्या कहते हैं, दैट इज द हाउ द न्यू स्पीशीज आर फॉर्म। तो डार्विन ने जब अपना वो बताया था तो उसको कुछ चीज़ें ज़्यादा पता नहीं थी। डार्विन डिडंट नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेयर द वेरिएशन विल कम। ही इवन डिड नो अबाउट द ही डिड नॉट इवन एम्फसाइज ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। वो तो अपनी बात कहता चला गया, हालांकि उसने जो कुछ कहा है दैट इज वन ऑफ द मेजर क्या कहते हैं आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन, एंड दैट इज व्हाई द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। नाउ इन प्रेजेंट टाइम what we are calling studying as the theory of evolution, उसके अंदर natural selection is one of the point, ठीक है। हम कई सारी चीज़ों को मिला करके हमने एक नई थ्योरी दी है, उसको हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक आपको अडेप्टिव रेडिएशन बता दिया, मैंने इससे पहले आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों बता दिए थे, ये मैंने आपको बता दिया दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो मैं इफ़ आई जस्ट फ्लाई एन एरोप्लेन इस चैप्टर के ऊपर, तो हमको मालूम पड़ेगा हमने क्या क्या पढ़ लिया एवोल्यूशन के चैप्टर में। वी आर स्टडीड द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, वी आर स्टडीड द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, वी आर स्टडीड अबाउट द क्या कहते हैं एसल व्हीलर्स एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया, है ना। देन व्हाट आर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, होमोलोगस एनालोगस सब हमने पढ़ लिए। देन वी आर स्टडीड अबाउट द ये हो गया सब, 131 पेज भी हो गया, 132 पेज भी वी आर डन। अडेप्टिव रेडिएशन 133 पेज भी हमने कर लिया है,
अब हम आते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज़ सिखाई है, इसको हम देख लेते हैं। ये वैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लीडरबर्ग नाम नहीं दिया बुक में, दे आर नॉट इवन स्टेटेड अबाउट इट, बट दे जस्ट दिस लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, इट शोज दैट व्हाई एवोल्यूशन टेक वेरी स्लो एंड व्हाई टेक लॉन्गर पीरियड एंड इज इट सेम लेंथ ऑफ पीरियड फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। तो इन चीज़ों को समझने के लिए क्या, लीडरबर्ग करके एक साइंटिस्ट है, लीडरबर्ग साइंटिस्ट ने क्या किया, he has taken a petri dish in which certain bacteria were there, rather उसने जो भी उसका मीडियम किया था वो रखा और उसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया, वन बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ टाइम तक मल्टीप्लाई करे। मान लीजिए इसने आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद में उसने क्या, उसमें से कुछ बैक्टीरिया को ले करके और पेनिसिलिन के लिए टेस्ट करा, टेस्टेड देम फॉर पेनिसिलिन, एंड व्हाट ही फाइंड दैट in the presence of penicillin all these bacteria dies in the medium of penicillin। इसका मतलब अगर 2 नहीं कर रहे हैं तो बाकी भी नहीं कर रहे होंगे, because they are reproducing by means of asexual reproduction in which the variation का कोई चांस ही नहीं है। Now what Ledderberg said, let this culture continue for longer period, उसने उनको कल्चर करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आफ्टर सम टाइम what it does is take a block of wood and उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा लगाता है, ठीक है, and then that wood block he just impress on it, so some of the bacteria will stick to it, and then he takes that into another petri dish in which the penicillin solution is there, उसमें लगा करके छोड़ता है, and then he sees whether all the bacteria dies, and to his surprise we find that some of the bacteria are surviving, others are dead. Now the question is, when the initial colony the bacteria were not able to tolerate penicillin, अब कहाँ से आ गए? Whereas this category of bacteria come from which can tolerate penicillin। तो यही तो एक्सपेरिमेंट है, यही तो हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जल्दी अडेप्टेशन हो गया अगेंस्ट द पेनिसिलिन। क्यों हुआ? Because bacteria's lifespan is very short. Very short means as short as 20 minutes. So they reproduce at a very rapid rate. And during the course of reproduction, they may bring some variation. उनमें कुछ errors आ सकते हैं, ठीक है, आ जाए तो लाख बार में, मतलब एक पहली बार में आ जाए, ना आए तो 10 लाख बार में भी नहीं आए। It is a copying system, and we have studied the DNA copying is so authentic, so genuine, so क्या कहते हैं faithful कि they don't bring variation। Yet हमने 4th point पढ़ा था उसी टाइम में जब हम पढ़ रहे थे, that is the need of a genetic material or the qualities of a genetic material। तो हमने पढ़ा था कि that the genetic material should occasionally bring variation। तो occasionally उसमें variation भी आना चाहिए। कैसे आता है variation? कि उस कॉपिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। समटाइम इन प्लेस ऑफ एडेनिन थाइमिन इज अटैच, और समटाइम एडेनिन के प्लेस में ग्वानिन लग गया, समटाइम लगा ही नहीं, समटाइम कुछ क्रोमोसोम का टुकड़ा एक्स्ट्रा लग गया, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, वी ऑलरेडी स्टडीड, सो आई नीड नॉट टू थ्रो लाइट ऑन दैट। सो दिस इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, और हो सकता है वो पहला ही प्रोडक्ट आपका खराब निकला और उसके बाद जितने हैं वो सब खराब निकले। हो सकता है 10,000 टाइम कर गया और 10,000 फर्स्ट वाला जो बैक्टीरिया उसमें एरर आ गया, एंड देन आगे का सब। तो एरर कैन कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द लार्जर द रिप्रोडक्टिव स्पैन, जैसे हम ह्यूमन है, जैसे एलिफेंट है, जैसे कोई दूसरे ऑर्गन है, अब ह्यूमन बीइंग को तो सरकार ने बाध्य कर दिया कि 21 साल से पहले आदमी शादी नहीं करेगा, 18 साल से पहले लड़की शादी नहीं करेगी। तो मतलब 18th ईयर में अगर मान लीजिए किसी को इतनी जबरदस्ती, इतनी जल्दी है कि 18th ईयर में पकड़ के शादी कर दे उसकी 12वीं क्लास पढ़ते के साथ ही। कौन करता है 12th क्लास पढ़ते के साथ ही शादी? फिर भी मान लो हमने किसी को पकड़ कर दी, एंड 19th ईयर में उसका फर्स्ट बेबी हुआ, एंड दैट फर्स्ट बेबी ओनली हैड सम म्यूटेशन, एंड दैट म्यूटेशन में गो ऑन, फिर वो 18 साल बाद दूसरी शादी करेगा। 18 क्या, अगर लड़का हुआ तो 21 साल बाद लड़की हुई। तो
अगर 100 साल के अंदर आप कितनी ज़्यादा तो 4 जनरेशन ले सकते हैं और 5, और यहाँ 5 जनरेशन तो आपको कितने मिनट में मिल गई है? 1.5 घंटे में मिल गई, 1.5 आवर, बल्कि उससे भी कम, 20-20 मिनट में ना, तो 20, 40, 60, फिर 80 और 100, मतलब 100वें मिनट के अंदर 100th मिनट में 100th मिनट में आपको यहाँ 5 जनरेशन मिल गई है. एंड यू कंपेयर इट विद अ ह्यूमन बीइंग, 100 years आर रिक्वायर्ड. So that is why in human being variation are very slow to occur, and in bacteria variation are occurring rapidly. तभी तो जो दवाई आप खरीदते हैं, आप देखें ना, एंटीबायोटिक्स, वी बॉट पेनिसिलिन. सबसे पहले पेनिसिलिन वाज नेम्ड एज, पेनिसिलिन को हमने रामबाण औषधि कह दी थी. हमने कहा कोई सी भी बीमारी पेनिसिलिन लगा दो, एनी डिजीज. Of course, it used to react. Some people used to die because of the reaction, but many used to survive. But कोई सी बीमारी, उस टाइम एक ही एंटीबायोटिक अवेलेबल था, पेनिसिलिन. फिर पेनिसिलिन के बाद में आया स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन. उसके बाद आया दैट इज टेरामाइसिन, फिर टेट्रासाइक्लिन, फिर एमोक्सिलिन, फिर मॉक्स आया, फिर पता नहीं कितने आते थे. और भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन चल रहा है, और कुछ और चल रहा है. ये टाइम के साथ चेंज हुई. क्यों करना पड़ रहा है चेंज? Why we need to change the antibiotics? Why not still treat the organism with penicillin? तो हमने देखा कि within this short span only the bacteria got adapted to not to be affected by penicillin. Bacteria get adapted very rapidly. उनमें बहुत तेजी से चेंज होते हैं because their lifespan is only of 20 minutes. तो वो बड़ी तेजी से चेंज कर लेंगे अपने आप को. हमको वो चेंज लाने में बहुत टाइम लगेगा. फर्ज कीजिए ना कि आपने कोई कार बनाने की कंपनी डाली, एंड यू फर्स्ट ईयर यू स्टार्टेड मेकिंग अ कार, और फिर आपकी इच्छा हो यार अब बोर हो गया, अपन दूसरी कार बनाएंगे. हमने उस कार का जो है डैशबोर्ड चेंज कर दिया, हमने उसका बम्पर चेंज कर लिया, हमने उसके हेडलाइट चेंज कर लिया, हमने सब कुछ चेंज कर, नई नवेली कार आई. नए लोगों के लिए तो खुशी की बात है. पुराने लोग जिनके पास में वो कार थी, बोले यार अब हमारी कार तो पुरानी दिखने लग गई. दूसरी बात क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ दोस टाइप ऑफ बम्पर्स, दोस टाइप ऑफ हेडलाइट एंड ऑल. तो 4 साल बाद में आपकी गाड़ी का हेडलाइट टूट गया, अब आप ढूंढते फिरो, यू विल नॉट गेट, बिकॉज द कंपनी इज डिसकंटिन्यूड दैट प्रोडक्ट. ठीक है. तो इसलिए क्या होती है, दो कंपनी जो होती हैं वो कुछ टाइम तक उसको चला. जो कंपनी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रही होती है उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते इंडिया जैसे कंट्री में. पीपल थिंक यार दे विल चेंज एंड हमारी कार की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मारुति. मारुति ने चलाए रखा सालों तक अपनी कार 800, नो चेंज. जहां चेंज किया कोलैप्स. काफी टाइम तक वो अपने क्या नाम से जितनी भी दूसरी गाड़ियां थी उनके अंदर वो जेन को एक बार चेंज किया, उसके बाद जेन कभी उठी ही नहीं, है ना. तो ये हाल हो जाता है. पीपल थिंक यार ये आज ये चेंज कर दिया, कल को वापस चेंज कर देंगे, तो हमारी गाड़ी की तो मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी. मोर एवर, चलो मैं बेच नहीं रहा, 10 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद हम इन्वेस्टमेंट ऐसे कर रहे हैं, 10 साल चलाएंगे गाड़ी. वी आर नॉट अमेरिकन जो एवरी 3 years में कार चेंज कर लेंगे. एंड देन the country as companies as well as government giving incentive. Government भी चाहती है कि ज़्यादा पुरानी होगी तो pollution करेगी, so they also give incentive, and companies also give incentive. So for them it is easy. Income is also high. हम लोग तो एक बार खरीद लेते तो सोचेंगे यार 10 साल तो चलनी ही चाहिए कम से कम, और मीनवाइल कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया. अब आपका हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, ये तो टूटने वाली चीज़ें हैं, टूटेंगी. अब आप ढूंढने जाओ, मिल ही नहीं रही, कानी आँख से चलाओ कार. यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, बहुत तेजी से मॉडल चेंज हो रहा है. तो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज के लिए चैलेंज हो गया. दे आर मेकिंग पेनिसिलिन. काफी टाइम तक पेनिसिलिन चला, पता चला बैक्टीरिया तो अडेप्ट हो गए. सेम इज ट्रू विद द इंसेक्ट्स. जब हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, दोज कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन द पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, अ सर्टेन काइंड ऑफ इंसेक्ट इज कॉजिंग डिजीज, और वो पेस्टिसाइड बेच रहे थे. कुछ टाइम बाद में वो पेस्टिसाइड डालो, कोई फर्क नहीं. और मच्छरों को देख लीजिए अपने घरों में, यू सी द मस्किटोज इन योर हाउस. आप पहले लेके आते थे गुड नाइट, क्या आता था वो बिस्किट जैसा भी, गुड नाइट,
आप वो रख देते थे, लगा देते थे एंड मस्कीटोज और ऑल आउट, और आप खुश हो कितनी बढ़िया नींद, आज एक भी मच्छर नहीं काटा, और सुबह उठते के साथ साथ 1 सप्ताह कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब 1 सप्ताह बाद में कुछ ऐसा लगता है एक आध मच्छर, मम्मी एक मच्छर तो मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, मम्मी बोले है हो ही नहीं सकता है, गुड नाइट लगाया ना, आफ्टर सम टाइम वो गुड नाइट लगा रखा, उसी के ऊपर डांस कर रहे रहते हैं, बिकॉज दे आर अडॉप्टेड, शॉर्ट लाइफ स्पैन, मस्कीटो लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा अडेप्टेशन आ गया, हम लोगों को पता नहीं है कि भाई हम में से द कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग में किसी में ऐसा अडेप्टेशन है क्या, वो हाइड्रोजन साइनाइड या क्या कहते हैं कोई और वो जो MIC थी ना वहाँ पे भोपाल में, ऐसी गैस को हम टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज वी विल नॉट हैव दैट मच ऑफ करेज टू गो भाई अल्लाह अच्छा मुझे सुंगा के दिखाओ मैं बचता हूँ कि नहीं, बट एडवर्स कंडीशन में कभी अगर MIC लीक हो गए तो सारे ह्यूमन नहीं मरते, सारे नहीं मरते, कुछ बच जाते हैं, क्यों बच जाते हैं, दे हैव अडेप्टेशन, होते हैं अडेप्टेशन, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होते हैं अडेप्टेशन, ठीक है, एंड नॉट ऑलवेज फॉर गुडनेस, ये भी याद रखना, अडेप्टेशन आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, नंबर ऑफ टाइम इट आर हार्मफुल, नंबर ऑफ टाइम दे आर हार्मफुल, और अदर दे आर मोर हार्मफुल देन द बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये चीज को समझाने के लिए लीडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट है, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ इस एक्सपेरिमेंट को क्या लिखा, देखिए, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ true sense would have started when the cellular form of life with the differences in the metabolic capacity originated on Earth. The essence of Darwinian theory about evolution and natural selection, the rate of appearance of the new forms is linked with the life cycle or lifespan. कितना साल जीता है, कितने टाइम के अंदर रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो दैट इज लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड। द माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट हैव एन एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस इंडिविजुअल विद इन आवर्स। द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए ग्रोइंग इन गिवन मीडियम हैज built in variation in term of ability to utilize and feed component. A changes into medium, a change in the medium composition would bring out only a part of the population से B. आपने वो क्या है, उसका जो उसका नेचुरल रहने का जो तरीका था, जो वट एवर बेयर मिनिमम कंडीशन इट रिक्वायर, आपने उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया। इन प्लेस ऑफ सोडियम क्लोराइड नाउ यू पुट सोडियम कार्बोनेट, तो मैनी में डाई, फ्यू में सर्वाइव, अब नई पॉपुलेशन उस पर खड़ी होगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, दैट अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी that can survive under new condition. In due course of time, this variant of population outgrows and the other and appears as a new species. तो ये फिर क्या है, कई टाइम बाद में वो पुरानी वाली चल ही रही है, एक नई वाली भी आ गई, तो अब इसको आप एक नई स्पीशीज कह पाएंगे, ठीक है। तो here say the fitness of B is better than the A under new condition. Nature select for the fitness. One must remember that the so-called fitness is based on to the characteristics which are inherited. कौन सा फिटनेस, जो इनहेरिट होती है, कौन सा फिटनेस जो इनहेरिट होती है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जानी है, तो करेक्टर भी जाना चाहिए। Hence there must be a genetic basis of getting selected and evolved. Another one saying that the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. ठीक है, कुछ के लिए वो हॉस्टाइल हो गया, कुछ के लिए वो अच्छा हो गया। द अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपको समझनी थी, दैट इज लाइफ स्पैन का क्या रोल। तो 3 चीज़ों का रोल हो गया, पर तीसरी चीज इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग। पहली चीज क्या हो भाई, हम ये नहीं कह सकते हैं कि लाइफ जिसकी छोटी है उनमें ही अडेप्टेशन होगा, बड़ों में भी हो रहा है, बट उसमें टाइम लगता है। वी कैन ऑब्जर्व देम आफ्टर सेवरल जनरेशन। उतनी हमारी लाइफ ही नहीं, वी आर हियर फॉर ऑलमोस्ट 50, 60, 70, 80 ईयर्स, ठीक है। और 60, 70 के बाद में हमारे ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएंगे, रिटायर हो गए सब आप, अब आपका काम नहीं है करके आपको बाहर निकाल देंगे।
ठीक है। तो हम तो ऑब्जर्व कब तक कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अप टू 60 ईयर्स, तो हमारे पास उतना ही तो पीरियड है, तो उससे कम जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें हम देख सकते हैं। वी कैन सी चेंजेस इन द डॉग, वी कैन सी चेंजेस इन द कैट, वी कैन सी चेंजेस इन द बर्ड्स, वी कैन सी, बट उनके लिए आपको उनको कलेक्टिव करना पड़ेगा, उनको एक कैप्टिव कंडीशन में रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू ऑब्जर्व देम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक आउट दैट देयर अडेप्टेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ है। इवन बिफोर डार्विन ए फ्रेंच नेचुरल साइंटिस्ट लेमार्क, तो लेमार्क के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सो मैं नहीं बोलूँगा। उसने क्या बोला है, जिराफ का एग्जाम्पल दिया है इसने, लेमार्क का। लेमार्क की थ्योरी में मैंने आपको वर्ड ये जिराफ का एग्जाम्पल नहीं दिया था, चाहे तो मैं दे देता हूँ, होता हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में हम लेमार्क की थ्योरी को पहले कैसे उसने एक्सप्लेन करा एंड हाउ ही रीच टू द कंक्लूजन। लेमार्क यूज्ड टू से in the jungles of Africa where the trees used to be there and grasses also used to be there, खूब सारे ग्रास भी हैं, ठीक है, कुछ ट्रीज हैं बड़े बड़े ट्रीज, और यहाँ पे जो हॉर्सेस के बराबर की जिराफ हुआ करते थे, जिराफ यूज्ड टू बी स्मॉल एंड दे यूज्ड टू फीड ऑन दिस, दे यूज्ड टू फीड ऑन टू दिस ग्रासेस। और वहाँ पे उस जंगल में काफी सारे ग्रेजिंग एनिमल्स थे, तो हॉर्स भी थे, है ना, जिराफ वर ऑल्सो स्मॉल, हॉर्स वर ऑल्सो देयर, डंकीज वर ऑल्सो देयर, जिब्रास वर ऑल्सो देयर एंड डियर वर ऑल्सो देयर, अभी भी हैं, वो तब भी हुआ करते थे, है ना, बारहसिंगा भी थे, रेनडियर्स एंड ऑल देयर, एंड दे ऑल यूज्ड टू फीड ऑन ग्रास। फॉर 2, 3, 4, 5 years there was a severe famine and the grasses used to be consumed within a short period of time by most of the herbivore animals। अब क्या ऑप्शन बचा है ये जिराफ के लिए, अगर इसको जिंदा रहना है तो रीच टू द लीव्स ऑफ द टॉल ट्रीज, तो फॉर दैट दे यूज्ड टू स्ट्रेच देयर नेक एंड during the course of stretching their neck, their forelimbs and their neck grew, say for example 1 centimeter। अब उनके बच्चे हुए तो ये कह रहा हूँ उनके बच्चों में इतनी बड़ी गर्दन और इतने बड़े पैर तो थे ही पहले से ही इन कंपेयर टू द नॉर्मल। फिर उन्होंने भी स्ट्रेच किया और ज़्यादा, तो अब उनका गर्दन इतना बड़ा हो गया, पैर भी इतना बड़ा हो गया, ऑल टुगेदर 1 इंच का डिफरेंस, तो 2 इंच का एडवांटेज मिल गया टू रीच टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विच आर अबाउट 2 इंच फ्रॉम द नॉर्मल हाइट। तो दे वर सर्वाइव्ड, अदर ऑल डाइड। फिर ये इन्होंने भी अपने आप को थोड़ा और स्ट्रेच किया तो 2.5 इंच तक पहुँच गए, और अदर 3 इंच तक पहुँच गए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोसेस चलता रहा। एंड देन व्हाट वी फाउंड आफ्टर सेवरल जनरेशन, ये कह रहा है कि वो जो है जिराफ, उनके फोरलिम्स और उनके गर्दन इतनी लंबी हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या केवल एक जिराफ ही अक्लमंद था वहाँ, बाकी सारे बेवकूफ़ थे क्या? हिरन नहीं देख रहा होगा, उसको नहीं इच्छा हुई क्या खाने की? वी तो सी goats are doing this, you see goats, they stretch their leg, they stretch their neck, but हमने तो नहीं देखा goats की गर्दन इतनी लंबी हो गई। तो आइडिया अच्छा था कहानी के लिए, बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ थ्योरी। बट हम लेमार्क को क्यों याद कर रहे हैं? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। उससे पहले के लोग कहाँ सोचते थे ऐसा? उसके पहले वाले तो ये कहते थे कि जो रिलीजन बोल रहा वही सही है, एंड दैट इज़ वाई हमने उनकी थ्योरी को जो है थोड़ा सा जगह दी है हमारी किताब के अंदर। ये कहाँ चला गया जोहित?